lot of success from the industry. And my South movie is supposed to be released very soon in Feb and March. And plus I've got a Hindi movie offer. So this year is very, very lucky and very, very successful for me, as you guys can see. And मेरे काफ़ी relatives, friends, well-wishers, काफ़ी लोग आए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं. Tell us about the Hindi film which you are doing, you know. Unique film about the film is that it's a very love story kind of, and it's a very college kind of, youth kind of love story, which is like very simple kind of, मतलब ज़्यादा ऐसे glamorous type of नहीं है, तो this is unique for me. Okay, if you can talk little bit about the production of, you know, the film which you are doing. See, basically it's a Telugu production house and it's a very big name, so I can't reveal it unless and until the film is not on the floors, like on the release. So that time we'll talk about it. Do you think it will be a good start doing a romantic film in Hindi? I don't mind doing that kind of movies, and even I can do something like Hate Story 3 also. So basically for me as an actor, I feel it's very important for a person to be very comfortable in whatever character he or she is given. Okay, it means you are saying you're open to do the film like Hate Story 3? Yes, of course. I don't mind. Yes, of course I can do such kind of movies. You might have seen my earlier photo shoots also. So basically I can do such kind of movies. I don't have any issues about it. Who is your role model from Bollywood, you know? My role model from Bollywood is basically Kareena Kapoor. I follow her a lot and I like her sense of style and elegance and everything, you know, right from attitude and each and everything. Okay, any male actor whom you love to work with? Basically, new crush of mine is Karan Singh Rohar, because I've seen Hate Story and he's looking very fabulous and I wish him all the best and I would love to work with him in the future. And even Salman Khan, I'm a big fan of Salman Khan, so I wish him also the best of luck, because just now his case has just come out and like, you know, Salman Khan has just come out of it and I'm really happy for him and I wish to work with him very soon. Okay, Sejal, you know, might be I'm not talking about the birthday. I wish you once again a very happy birthday. Your favorite director from the industry? My favorite director from the industry is Karan Johar, and he will always be a favorite because I'm very much inspired by Karan Johar kind of movies and I really like that genre. How Karan Johar makes that what you say is like kind of movies, family kind of movies you see, K3G and all, and like, you know, that kind of family drama movies I'm very happy to do. Thank you, Shreya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. My name is Arjuman Mughal. Exactly. Yes. Arjuman, tell us how come you're here? You know, you hardly come to any event. Actually, I'm here because it's Sejal's birthday, and Sejal is a good friend, and she's a very beautiful actress and also a very beautiful model. And I would like to wish her best, career and her good life. So I just came to wish her here. Okay, Arjun, what's happening on professional front? What are you doing? What's there in the pipeline? Me, actually, I'm shooting for my film Tera Kya Hoga Lambodar, and which will be releasing in May, I think. Yeah, and also I'm shooting for one film called Sad Flute, which is a cross-border story, and we shot in Kashmir. It's a beautiful story I'm doing. Okay, it's too early to talk about, but still want to know what would be your role like in Tera Kya Hoga Lambodar, you know? Tera Kya Hoga Lambodar is a film, it's a comedy, suspense and romance. I'm playing a superstar in the film, and this girl loves a boy who is pursuing acting actually, and he's a very raw guy who loves, who want to become a superstar, but the whole world is after this girl and she is after this boy. And Mr. Pawan Malhotra, he is an amazing actor, and we have worked together. He's playing a director in the film, so it's an amazing, hilarious film. You are going to watch this. Okay, film. Is there a chance we'll see your hot avatar of yours, hot sexy avatar of yours? Actually, I am playing an actress in the film, so there are I think actress glamour is very important thing for an actress, so definitely you will be seeing a glamour avatar in this film. Thank you so much. सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे सेजल के बारे में? आज इसका जन्मदिन है तो कितना कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? सेजल प्रिंसेस जैसी लग रही है, सो आई विश्ड वेरी शानदार बर्थडे. आई थिंक बड़ा ही अमेजिंग ईयर होने वाला है.
2016 is gonna be good for her, and so I'm thankful she called me, and I'm thankful that she's looking good and threw such a nice party. और उसको शानदार ईयर है। क्या स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं आप? स्पेशल गिफ्ट मैं खुद आया हूँ, वैसे मैं बुके लाया हूँ, मैं मेरी ब्लेसिंग्स लाया हूँ, बहुत सी दुआएं, बहुत से चीज़ें लाया हूँ। सो यस, आई थिंक आई एम गिविंग अ ब्लेसिंग्स एंड नाइस थिंग्स। Upcoming project of yours, you want to share? Yes, there is one coming. I'm going to start shooting in February. It's Boni Kapoor's movie. I think Nawaz bhai hai, Sridevi ji hai, Arjun bhai hai, मैं हूँ. So I think we're going to start shooting from February. उसके बाद 2 और प्रोजेक्ट है, जब फ्री डेट्स होंगी तब दूसरा करेंगे. Yeah, thank you so much. Thank you. एक ID चाहिए. You're watching Bollywood Tarka. Hello, I'm Vikas Verma and you're watching Bollywood Adda. Keep watching. तो क्या कहना चाहेंगे सेजल के बारे में? उनका बर्थडे है आज, तो किस तरह से विश करने वाले हैं? क्या सेलिब्रेशन होने वाला है यहाँ पर? First of all, I would like to wish Sejal a very, very happy birthday. और may this year, the next year which is coming, brings a lot of happiness and a lot of success to her. और क्या स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं? स्पेशल गिफ्ट, एक्चुअली उसने इतनी अच्छी पार्टी हम सब पे थ्रो की है कि उसके आगे स्पेशल कुछ नहीं, बट शी हर सेल्फ इज़ लुकिंग सो प्रिटी, शी इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टी बिकॉज इट्स रियली रॉकिंग. आज के दिन कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? Birthdays are always very special. Like I am a person who love my birthday a lot. So when it's about birthday, it's something very special, and I'm sure it's very special for her also. And you know, with birthdays, you always have a lot of memories with your family, with your friends, and I'm sure she'll be having all of them. And I wish her a lot of good memories ahead too. Thank you so much. Thank you. अच्छा ठीक है, ओके, हाँ ठीक है. सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? सेजल का आज पार्टी होने वाला है, पार्टी है तो क्या कहना चाहेंगे? सेलिब्रेट करने आए हैं हम लोग, और एब्सोल्युटली सेजल इज़ लुकिंग लाइक प्रिंसेस, शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. इट्स अ बर्थडे, हम सब आज बहुत मस्ती करने वाले हैं. अच्छा, सेजल के साथ की कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? बहुत मस्ती खो रहा है वो, और शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस फ्रेंड, वेरी गुड गर्ल बाय हार्ट, एंड इट्स अमेजिंग ऑलवेज टू बी प्रेजेंट फॉर हर ओकेजन्स एंड बर्थडेज. एंड आज मस्ती की रात है. वैसे मैं दारू वारू पीता नहीं हूँ, बट आज उन लोगों ने बोला कि हाँ आज थोड़ा तो करना पड़ेगा. मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए. आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म विद आनंद कुमार, इट्स कॉल्ड वायरल, एंड यू सी मी इन लॉट ऑफ टीवी ऑब्वियसली. सो अभी MTV बिग एफ खत्म है. जस्ट शॉट विद ऋतिक रोशन फॉर हीट यूरिन कमर्शियल. इट्स अ बिग एड, लॉट ऑफ शोज, एंड या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. गरीब होने से अच्छा है गली के राजा रहो. तो दोस्त है पारुल मेरी और सेजल, तो उनका इतना बड़ा दिन है तो उन्हें विश करने आया हूँ. बोलते हैं जहाँ इज्जत मिले वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आया हूँ. बोलिए और क्या है? अजय भाई, ये जो पार्टी, अगर ये आपकी बर्थडे पार्टी होती तो आप क्या स्पेशल करना चाहते हैं, क्या थीम रहता? भाई मेरी बर्थडे हमेशा गरीबों के साथ होती है, या तो फिर अनाथ बच्चों के साथ होती है, या फिर मैं अपने माँ बाप के साथ मना लेता हूँ, या फिर मेरे जो गरीब दोस्त है उनके साथ मनाता हूँ. मेरी बर्थडे का स्टाइल बहुत अलग है, तो शायद इतना वैसा नहीं होगा. बाकी लोग जो मेरे लिए पार्टी दे देते हैं वो अलग बात है, बट मैं इस तरह से मनाता हूँ अपना बर्थडे. क्योंकि क्या होता है, एक तो तुम्हारी ज़िंदगी का दिन कम हो रहा है, साल कम हो रहा है, उसके बाद फिर तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, तो उस साथ साथ में अगर तुम ये भी करो लेकिन कुछ गरीबों की, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है, तो तुम भी उन लोगों की. क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ विश होती है, जैसे मेरी विश थी कि मैं ऐसे लोगों को कुछ करवाऊँ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ना हो. जैसे मेरी एक थी कि मेक अ विश कि फ़्लाइट में जो पहली बार नहीं बैठे तो उनको फ़्लाइट में बिठाना. तो उसी में मेरे को एक अच्छा इंसान भी मिल गया था, राना जो मेरा ड्राइवर था. तो वैसी विश, मेक अ विश में एक देहरादून का लड़का सिलेक्ट हुआ, राना, तो वो फ़्लाइट में कभी नहीं बैठा था, तो उसके साथ मैं बैठ के फ़्लाइट में उसको देख के जो मुझे मज़ा आ रहा था,
वो खुशी मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता कि पहली बार फ्लाइट में वो आदमी बैठा और वो जो जैसे देख रहा था नीचे ये वो, तो ये खुशी जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना भी मैं लोगों के लिए कर सकूं, अभी मैं इंशाल्लाह हिंदुस्तान की आवाज़ भी बनने वाला हूं कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि आप देखिए मीडिया का भी उसका भी इसमें बहुत बड़ा, मीडिया बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूँ, आपको मेरा सच ही पसंद है। तो क्या होता है आजकल सबके हाथ बंधे हुए हैं, मजरूम है, सबके गलों में फांसी के फंदे लटके हुए हैं, बड़े बड़े लोग पैसों से और ताकत से, पावर से सबको खरीद लेते हैं, उसमें किसी का कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे कभी नहीं खरीद पाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं बनना चाहता हूँ भगत सिंह मॉडर्न ज़माने का, अशफाक उल्लाह खान मॉडर्न ज़माने का, कि जो लोगों के लिए कुछ बात करे। अल्लाह जितना पावर देगा उसमें से थोड़ा मैं इनके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे अभी मैं छोटा सा एक किस्सा बताऊं कि किसी पे कोई जुल्म होता है, जैसे आपने देखा चंडीगढ़ में एक बहुत ही बुजुर्ग, सबने देखा होगा, सरदार जी और उनकी बीवी, और उनको एक आदमी आके ऐसा मार रहा है, वो कैमरे में कैप्चर हुआ कि एक सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र कुछ 80-90 साल है दोनों की, उनको वो मार रहा है। पूरी दुनिया वो देख रही है, उस पर कमेंट भी कर रही है कि ऐसे कुत्तों को तो काट देना चाहिए, इसको मार दो, इसको बांध के ये कर दो। तो मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान के वासियों, उंगलियां दो अंगूठे चलाना तो कोई भी कर सकता है, फ़ोन पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, लेकिन मेरा एक शो शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं ऐसे लोगों के लिए ऑन द स्पॉट वहाँ पे पहुँचूँगा और उसके बाद मैं उनके लिए जो भी कर सकूँ अपनी तरफ से वो मैं करूँगा। और जो उनको मार रहा था उसको मैं कहूँगा कि बेटा मेरे साथ लड़, इनसे क्या लड़ रहा है, तू मुझसे लड़, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो मुझे मार। और इंशाल्लाह एक दिन मेरे साथ पूरे हिंदुस्तानी होंगे, क्योंकि हम सब अंदर से मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं हम लोग क्या सिखाएंगे बच्चों को यार। पहले मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरा जब बच्चा हुआ, जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, तो अब वो मेरे से चीज़ें पूछता है, तो मैं मैंने कहा यार मैं इसको क्या सिखाऊंगा। ऑनेस्ट रहो, ईमानदारी से रहो। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी ये होती है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, हम लोग सब ऑनेस्टी ढूंढ रहे हैं, मुझसे ऑनेस्ट रहना भाई, सच बोलना। मेरी गर्लफ्रेंड को भी बोलते सच बोलना, यार तेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, लेकिन वो जब बोलेगी मेरे 4 एक्स बॉयफ्रेंड थे, तो उसको फट से तुम छोड़ दोगे। अरे उसने सच बोला बेटा, लेकिन हो सकता है वो 4 में कुछ कमी होगी, वो तेरे में ढूंढ रही थी, तू उसको मिल गया। अब तू उसको जज मत कर, उसको इज्जत दे, वो तुझसे सच बोली। दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप किसी नौकर को रख लो, तो वो नौकर से तुम बोलोगे सच बोल बेटा, तूने कभी लाइफ में कोई गलती तो नहीं की, ये तो नहीं किया। अगर वो नौकर तुमसे कहेगा कि मालिक मैंने पिछले वाले मालिक के 500 रुपये चोरी किए थे, लेकिन वो इसलिए किए थे कि मुझे बहुत परेशान किया था, मेरी तनख्वाह में से उसने काट लिए थे, तो मैंने वो 500 चोरी कर लिए थे। तो नॉर्मली क्या होगा, आदमी बोलेगा अच्छा बेटा उसके यहाँ चोरी किया, मेरे यहाँ भी करेगा, चल निकल जा। तो फिर तुमको लगता है वो आदमी सच बोलेगा। अब याकूब मैमन कितना भी बड़ा टेररिस्ट, कितना भी बड़ा वो है, कुछ भी किया उसने, लोगों को मार दिया, ये किया, गलत बात है, बहुत गलत बात है, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक मुद्दा हिंदुस्तान की लॉ का और लोगों का, कि एक टेररिस्ट वहाँ से अपने आप को सरेंडर करता है, उसके बाद वो सारे टेररिस्ट का पता बताता है, ये बताता है, हिस्ट्री बताता है, पुलिस को हेल्प करता है, सरकार को हेल्प करता है, उसके बदले इतने साल उसको अंदर रख के उसको क्या मिलता है? फांसी मिलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ मिलनी चाहिए सबको, साध्वी जी को भी मिलनी चाहिए, उन्होंने ब्लास्ट में साथ दिया था, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ फांसी मिलनी चाहिए, सिर्फ उसको नहीं। अब आपको लगता है कोई टेररिस्ट आके सरकार को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ आपके पास? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल है, उसको बोला जाएगा बेटा याकूब मेनन को देखा था, जाके सरकार की मदद किया, फांसी पे लटका दिया उसको। तो ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो, लेकिन ऑनेस्ट तो बनो। ऑनेस्टी जा रही है भाई। भगत सिंह फांसी पे लटक गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। गांधी जी इसलिए याद है क्योंकि नोट पे छपे हुए, जिस दिन नोट से उनकी तस्वीर चली जाएगी उस दिन गांधी जी को भी लोग भूल जाएंगे। भगत सिंह के जो फैमिली वाले भूखे मर रहे हैं, और पंजाब के ठेकेदार वहाँ पे वो, अरे मेरे भाई पंजाब फेमस है भगत सिंह के वजह से, थोड़ा तो उनको मदद करो। बच्चों के इतने भिखारी है, लेकिन यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते साले। अपना घर अच्छा, बाहर वाले मरे तो सच्चा। गाड़ी कितनी भी बड़ी है, रोज खड्डे में जा रही है, लेकिन रोड नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊं? मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में एसी है, रोड नहीं बनाऊंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे भाई, मैं बोलता बहुत हूँ लेकिन सच्चा बोलता हूँ, और सच्चे मिलते नहीं है, झूठे टिकते नहीं है। बड़े खड़े छोटे बड़े आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे ले। तो जागो। If you want to be the change, you have to be the change. And change is not only your voice, not only your Twitter or computer. You have to give your time. नहीं तो आगे जाके ऐसा आएगा ना मेरे भाई, पुंगी बच जाएगी, पुंगी।